لداخ اپنے محل وقوع اور جغرافیے کی وجہ سے دنیا کے اہم ترین خطے میں موجود ہے۔ یہ تین طرف سے تین ایٹمی طاقتوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ خطہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے اور ریاست جموں کشمیر و اقصی تبتہا کا ایک حصہ ہے، جس متنازع حصے پر بھارتی اور چینی افواج آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کا دور دراز خطہ لداخ، جہاں اس وقت چینی اور بھارتی فوج آمنے سامنے ہے، یہ ہزاروں سالوں سے ہندوستان، تبت، چین، ترکستان اور وسط ایشیا کی ایک اہم گزرگاہ رہی ہے۔ خوبصورت محل وقوع اونچے پہاڑ یہاں پائے جاتے ہیں۔ لداخ دو ضلعوں لیہ اور کرگل پر مشتمل ہے۔ اس خطے کا رقبہ 97,872 مربع کلومیٹر ہے، مگر اقصائی چین علاقے پر چین کا قبضہ ہے، جس کے علاوہ باقی رقبہ 58,321 مربع کلومیٹر ہے۔ اسے بدھ اکثریتی علاقہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق اس خطے کی 2,74,000 کی آبادی میں 46.40% مسلمان اور 39.65% بدھ مت کے پیروکار تھے۔ سری نگر سے 418 کلومیٹر کی مسافت پر شمال میں قراقرم کے سلسلہ کوہستان اور دریائے سندھ، جنوب میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں گرا ہوا دو اضلاع یعنی لیہ اور کرگل پر مشتمل خطہ لداخ ہے۔ لداخ کی حدود مشرق میں چین کے علاقے تبت، جنوب میں بھارت کی ریاست ہماچل پردیش، مغرب میں جموں اور شمال میں چین سے اور جنوب مغرب میں پاکستان سے ملتی ہیں۔ اس کا قدرتی راستہ سری نگر سے جاتا ہے، لیکن وادی کشمیر کے ضلع گاندربل کے سونا مرگ علاقے سے ہی بھاری برف باری کے باعث لداخ کی طرف جانے والا یہ راستہ 6 ماہ تک تقریباً بند رہتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق لداخ کے دونوں اضلاع کی آبادی 2,74,290 نفوس پر مشتمل تھی۔ یہاں 3 زبانیں لداخی، بلتی اور شینا بولی جاتی ہے۔ لداخ کے 2 اضلاع لیہ اور کرگل جبکہ 6 تحصیلیں ہیں۔ لداخ کا ضلع لیہ بدھسٹوں کی آبادی پر مشتمل ہے، جبکہ کرگل ضلع میں مسلمان آباد ہیں۔ لداخ کے ان 2 اضلاع کو پہلے سے ہی وادی کشمیر کی انتظامیہ سے کاٹ دیا گیا تھا اور 1993 میں لداخ خود مختار ہل ترقیاتی کونسل قائم ہوئی اور اسی کے ذریعے لداخ خطے کو چلایا جا رہا تھا۔ ماضی میں یہ علاقہ بھی ریاست گلگت سے منسلک ہو کر سینٹرل ایشیا کے لیے تجارتی راستہ تھا اور سلک روڈ یا شاہراہ ریشم کے ساتھ منسلک تھا۔ تاہم 1962 میں 1962 میں چین بھارت جنگ کے باعث لداخ شاہراہ ریشم یا سلک روڈ سے مکمل طور پر منقطع ہوا۔ لداخ پر تبتی ثقافت کی گہری چھاپ ہے اور اسے تبت صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ لداخی کھانے بھی تبتی کھانوں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے متنازع جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت سے جڑے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد 31 اکتوبر 2019 سے ان خطوں کو باضابطہ طور پر 2 الگ الگ اکائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نئے معاہدے کے تحت جموں کشمیر کے 1,22,00,000 افراد پر مشتمل ایک الگ اکائی، جبکہ لداخ کے 2,70,000 افراد پر مشتمل دوسری اکائی قرار دی گئی۔ دونوں اکائیاں براہ راست نئی دہلی کے زیر انتظام چلائی جا رہی ہیں۔ مستقبل میں جموں کشمیر میں بھارت کے ایک لیفٹیننٹ گورنر کی نگرانی میں 5 سالہ مدت کے لیے ایک قانون ساز اسمبلی قائم ہوگی، تاہم اصل اختیارات دہلی کے پاس رہیں گے، جبکہ دوسری جانب بھارت کا تعینات کردہ ایک لیفٹیننٹ گورنر لداخ کو چلائے گا۔ یہاں کوئی قانون ساز اسمبلی نہیں ہوگی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ لداخ کا یہ علاقہ برطانیہ، چین اور روس کی چپکلش کا مرکز رہا۔ تاجروں، سیاحوں اور سپاہیوں کے لیے سنکیانگ کے شہر خوتان اور کاشغر کے سفر کے لیے لداخ ایک اہم زمینی رابطہ تھا۔ لیہ شہر میں بدھ خانقاہ نمگیال سیمو گمپا ہے اور اس سے کچھ فاصلے پر تاریخی جامع مسجد بھی ہے۔ کشمیر کی طرح لداخ بھی 20ویں صدی میں ہونے والے سیاسی واقعات کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا۔ قدیم شاہراہ ریشم کی ایک شاخ اس خطے کے بلند و بالا پہاڑوں سے ہو کر گزرتی تھی۔
चीन के 1949 में मशरकी संकियांग पर और फिर 1950 में तिब्बत पर कब्जे के बाद यहाँ से राहदारियाँ बंद हो गईं, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान 1947 में तकसीम हिंद और तनाज़ा कश्मीर की वजह से खित्ते में पैदा हुई कशीदगी की वजह से हुआ, क्योंकि इस अजीम तरीन खित्ते को अपना समझने वाला कोई नहीं था। मुसलमान सिर्फ कश्मीर की बात करते थे। पाकिस्तान पूरे खित्ते में रायशुमारी के बजाय कश्मीर और जम्मू के मुसलमानों की बात करता रहा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास आ गया, लेकिन गिलगित का हिमालयाई खित्ते और ग्लेशियर से राब्ता ख़त्म करवा दिया गया, जिसके बाद 1962 की भारत चीन जंग हुई, जबकि इस जंग समेत ये खित्ता 5 जंगें बर्दाश्त कर चुका है। यूं लगता है कि खित्ता लद्दाख, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर व अक्साए तिब्बतहा का एक अहम हिस्सा था, इसे किसी ने अपना ना समझा। लेह का रहने वाला, लेह का बच्चा रियासत जम्मू कश्मीर की बात करता तो था, लेकिन कभी मजहब का सहारा लेकर और कभी भारत की साजिश का शिकार होकर खामोश हो जाता था। और इस खित्ते के रहने वालों की ना कोई आवाज़ सुनने वाला, ना उन्हें कोई अपना कहने वाला है। सबको लद्दाख की ज़मीन की ज़रूरत है। भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ चपकलश ने इस पूरे खित्ते के तारीखी रुआबित मुनक़ता करवा दिए, इसको गरीबी और अफलास में धकेल कर रख दिया है। ये खित्ता 3 मुल्कों में तकसीम हो गया। एक ख़ानदान से एक भाई चीन के पास चला गया, दूसरा भारत ने ज़बरदस्ती कब्ज़े की नज़र किया और गिलगित के पास बसने वाले पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। लद्दाख में तुर्क ताजर आए, तुर्कों ने लद्दाख में सुकूनत इख्तियार की, वहाँ पर कश्मीरी और लद्दाखी ख्वातीन से शादी की। उनकी नस्ल को अरगोन कहते हैं। दीगर नस्लों में यहाँ मून और मंगोल काबिल ज़िक्र हैं। 90 की दहाई तक लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध आबादी में अच्छा ताल्लुक़ और मेल जोल था। दोनों के दरमियान मोहब्बतें थीं, लेकिन एक मुनज़्ज़म अंदाज में नफ़रतें पैदा की गईं। लद्दाख के मुसलमानों और बौद्ध मज़हब के मानने वालों को लड़ाने की कोशिश की गई, हालांकि इससे कबल फ़िरका वाराना मुनाफरत का कोई नामो निशान नहीं था। मुग़ल दौर में लद्दाख के बाजगुजार नमग्याल ख़ानदान के फरमारवा खतूत और सिक्कों पर महमूद शाह या इसी तरह के मुसलमान नामों से अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे। इसके बाद लद्दाखी बौद्ध डोगरा हिंदू से नफरत करने लगे थे। इसकी एक अहम वजह थी। वो वजह ये थी कि वो ये भूल नहीं पा रहे थे कि जब 1841 में डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख पर फौजकशी की और हमला किया, तो इन बौद्ध मज़हब के मानने वालों की इबादत गाहों को अस्तबल बनाकर उनकी बेहुरमती की गई, यानी उनकी इबादत गाहों में घोड़े बांधे गए। मगर जूं जूं भारतीय सियासी असर रसूख लद्दाख में बढ़ने लगा, मुसलमान और बौद्ध दोनों फ़िरकों के दरमियान महाज आराई शुरू हो गई, नफ़रतें बढ़ाई गई। बौद्ध मज़हब के मानने वालों को बताया गया कि उनकी पसमानदगी, उनकी गुर्बत की वजह श्रीनगर के हुक्मरान हैं, जिसकी वजह से कश्मीरियों से भारत ने नफरत के जज्बात उभारे। इसी को लेकर 90 की दहाई 1990 के शुरू में यहाँ के बुद्ध आबादी ने इस खित्ते को कश्मीर से अलग करने और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनाने के लिए एजिटेशन शुरू की। इसके पीछे भारत था, लेकिन नादान कश्मीरी की आदत भी थी, जो लद्दाख के रहने वालों से मोहब्बत से पेश आने के बजाय कश्मीर मसले को कभी मजहब का रंग दे देती, कभी लद्दाख को इससे अलग कर देती, जिससे मजीद दूरियां पैदा हुईं। इसके रद्द अमल में बुद्ध तंजीमों ने मुसलमानों के सोशल बाइकाट की कॉल दी, जो 1994 तक जारी रहा। इसके पीछे भारत की साजिश थी, लेकिन कश्मीरी सियासतदानों का रवैया भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक था। लिहाजा भारत और कश्मीरी सियासतदानों को लद्दाख के रहने वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लद्दाख का खित्ता कई अजीब व गरीब रस्म व रवाज की वजह से भी मशहूर है, मगर ये रस्म व रवाज आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ लद्दाख की हज़ारों साल तारीख़ से था। पूरे खित्ते में ज़री ज़मीन का रकबा महज 620 मरबा किलोमीटर है। कई दीगर रसूम बुद्ध कल्चर का हिस्सा हैं। इस खित्ते के राब्ते मुनक़ता होने का सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम अक्सरियती इलाके करगिल ज़िला को उठाना पड़े हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान जंगों में इस ज़िले के कई देहात कभी इधर तो कभी उधर चले जाते थे। 1999 की करगिल जंग के बाद जब देहातों की सरकारी तौर पर पैमाइश की गई, तो मालूम हुआ कि करगिल इलाके के कई देहात तो सरकारी रिकॉर्ड में हैं ही नहीं।
इसलिए 2001 की मर्दमशुमारी में पहली बार मालूम हुआ कि लद्दाख खित्ते में मुस्लिम आबादी का तनासुब 47% है और बौद्ध आबादी से ज़्यादा है, वरना इससे कबल इस खित्ते को बौद्ध अक्सरियती इलाका माना जाता था और अक्सर लिखारी अभी भी पुराने आदाद शुमार को ही इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि करगिल स्कर्दो तहसील का हिस्सा होता था, इसलिए यहाँ की ज़मीनों और जायदाद के रिकॉर्ड भी अभी भी स्कर्दो की मुहाफ़ज़ खाने में मौजूद हैं। लद्दाख को बाकी दुनिया से मिलाने वाले 2 रास्ते श्रीनगर की तरफ जोजिला दर्रा और हिमाचल प्रदेश की तरफ रोहतांग दर्रा 6 माह के लिए बर्फ़ की वजह से बंद हो जाते हैं। करगिल स्कर्दो के दरमियान 192 किलोमीटर का फासला है। ये पूरा साल खुला रहता था। लेह और लद्दाख से काशगर, खोतान और यारखंद को जाने वाले रास्ते आज भी मुसाफिरों और काफिलों का पिछली कई दहाइयों से इंतजार कर रहे हैं। इस वादी में वस्त एशिया और दश्त गोबी की पहचान यानी 2 कोहान वाले ऊंट मिलते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद के साथ 3 मंजिला म्यूजियम बनाया गया है। ये म्यूजियम इस खित्ते के तुर्कस्तान और वस्त एशिया के दरमियान तारीखी रवाबित का शाहकार है। तुर्क अरगोन ख़ानदान ने नवारदात का एक खासा बड़ा ज़ख़ीरा इस म्यूज़ियम में महफूज रखा हुआ है। मौजूदा हालात में चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजों की कशमकश का मरकज़ गुलवान वादी भी एक तुर्क अरगोन ग़ुलाम रसूल गुलवान के नाम से मौसूम है, जो एडवेंचर के शौकीन बरतानवी सियाहों के लिए गाइड का काम करते थे। 1892 में एरल ऑफ डेमोर की क़यादत में सियाहों के काफ़िले को जब वो गाइड कर रहे थे तो ये काफिला बर्फानी तूफान में गिर गया और फिर भटक गया। गुलवान ने मुतबादल रास्ते को दरियाफ्त करके इस काफिले को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया। एरल ऑफ डेमोर ने इस वादी जिसको उन्होंने दरियाफ्त किया था गुलवान के नाम से मौसूम किया। इस तरह तुर्क रवाबित की वजह से दौलत बेग का वसीअ व अरीज़ मैदान तुर्क सरदार सुल्तान सईद खान अलमारूफ दौलत बेग के नाम से मौसूम है। ये खित्ता आलमी ताकतों की ग्रेट गेम का शिकार रहा है। मुग़लों और बाद में बरतानवी हुकूमत ने लद्दाख पर बराह रास्त अमलदारी के बजाय इसको एक बफर इलाके के तौर पर इस्तेमाल किया। पूरी आबादी अब एक अलग थलग और एक कोने में ज़िंदगी गुजारने से परेशान हो चुकी है। जब भारत ने लद्दाख को कश्मीर से अलग किया तो सरकारी मुलाजमत और पुलिस में लद्दाख के मकीनों को लेह और करगिल पोस्टिंग के लिए भेजा गया तो तकरीबन सभी ने लद्दाख में जाने से इनकार कर दिया। यानी 2020 में भी ये इलाका दूर दराज और बुनियादी सहूलियात से इतना महरूम है कि सरकारी मुलाजमीन यहाँ आना पसंद नहीं करते। लेकिन लद्दाख की कोई आवाज़ नहीं बन रहा और अब ज़ोर ज़बरदस्ती से लद्दाख के रहने वालों को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके के कैडर में शामिल किया गया। हिंदुस्तान, चीन और भारत लद्दाख की स्ट्रेटजिक अहमियत को तस्लीम तो करते हैं मगर फ़ौजी नुक्ता नज़र से आगे नहीं देख पा रहे कि वहाँ इंसान भी बसते हैं, वहाँ सांस लेने वाला भी कोई है। बस सब फ़ौजी निगाह से इंसानों की बस्ती लद्दाख को देखते हैं, हालांकि ये जीते जागते इंसानों का खित्ता है जिनसे कभी कोई मोहब्बत से पेश ना आया, ना किसी ने यहाँ के इंसानों के बारे में सोचा। बस यहाँ की स्ट्रेटजिक लोकेशन सबको पसंद आई। काश ये खित्ता ज़मीन लद्दाख एक बार फिर तिजारत, रवाबत, मोहब्बत और तहजीबों का मरकज़ बन जाए। लद्दाख से मुताल्लिक ये तारीखी वीडियो आपने देखी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर मुझे लाइक करें और Twitter पर मुझे फॉलो करें ताकि मुस्तकबिल में जितनी भी वीडियोज़ और अपडेट्स आती रहें वो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें, मुस्कराते रहें।